pray? आइए हम सब प्रार्थना करें। Thank you, Father. We give you praise. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Father, we come before you in the name of Jesus. पिता, हम तेरे समीप आते हैं यीशु के नाम से। We thank you for your goodness. हम आपकी भलाई के लिए धन्यवाद We करते thank हैं। you for this another opportunity to come together physically to worship you. और आपने दोबारा हमें ये मौका दिया कि हम एक साथ आकर आपकी आराधना करें, इसलिए धन्यवाद। Thank you, Lord, for you give us this place also, धन्यवाद पिता कि आपने हमें ये जगह भी दी है so that we can come together physically to worship you. ताकि हम शारीरिक रूप से एकत्रित होकर आपकी आराधना कर सके। Now you said, my sheep hear my voice. आपने कहा मेरी भेड़ मेरे आवाज को सुनती है। We are your sheep and you are talking to us. हम आपकी भेड़ है और आप हमसे बातें कर रहे You're हैं। talking to each one of us today. अब हम में से हर एक व्यक्ति से आप बात कर रहे You're हैं। giving us revelations. आप हमें प्रकाशनों को दे रहे You're हैं। giving us directions. आप हमें दिशाओं को दे रहे हैं। You're giving us clarity. आप हमें स्पष्टता दे रहे हैं। We thank you, Lord, for higher dimensions. पिता, हम धन्यवाद करते हैं उच्च आयामों के लिए। Thank you for this wonderful month of November इस नवंबर के अद्भुत महीने के लिए धन्यवाद and all करते the हैं। things that you are doing in November. और जो भी चीजें आप इस नवंबर के महीने में कर रहे हैं, We commit our lives to you. हम अपने पूरे जीवन को आपकी ओर समर्पित करते हैं। You are a great king, आप एक महान राजा हैं and we worship you in spirit and in truth. और हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई में करते हैं। Thank you that your presence is manifest here. धन्यवाद कि आपकी उपस्थिति यहाँ प्रकट हो रही है। Thank you that you are touching every heart here. धन्यवाद कि आप यहाँ हर एक हृदय को छू रहे हैं। Thank you, Spirit of God, for freely moving. पर धन्यवाद पिता की परमेश्वर की आत्मा की आप यहाँ पे आसानी से आपका चलन कर रहे हैं। Thank you that your presence is thick here. और धन्यवाद कि आपकी उपस्थिति यहाँ पे गाढ़ी है। We give you glory हम आपको स्तुति देते हैं in Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। Amen. We are continuing our sessions on prosperity and we'll continue to do it. हम समृद्धि की श्रृंखला जो हमारी चल रही है हम उसे जारी रखेंगे। Let's see, we were talking about the lifestyle of kings, part 8. हम राजाओं की जीवन शैली भाग 8 के बारे में बात करेंगे। November also will continue with the lifestyle of kings. Why the lifestyle of kings is so important. और नवंबर के महीने में भी हम इस श्रृंखला को जारी रखेंगे ताकि हम समझ सके कि राजाओं की जीवन शैली महत्वपूर्ण क्यों है। Let's see the first verse. हम पहले वचन को देखेंगे। Revelation 1:5. प्रकाशित वाक्य 1:5। It says, from Jesus Christ, who is the faithful witness and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth, unto him that loved us and washed us from our sins in his own blood. और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वाले पहलोटों में और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। Verse 6. वचन 6। He has made us, this is what we are talking about, he has made us kings and priests unto God his Father. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. और हमें एक राजा और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। The moment you accepted Jesus as your Lord, you were made a king. You were made a king. और जिस क्षण आपने यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया, उसी क्षण आप राजा बनाए गए। See, it says you are been made a king and a priest unto God. उसमें लिखा है कि पिता परमेश्वर के लिए आपको एक राजा और याजक भी बना दिया गया है। So even though you may not look like a king, the Bible says in your spirit you have been made a king. भले आप बाहरी रूप से आप एक राजा की तरह नहीं दिखते हो, पर बाइबल कहती है कि आत्मा में आप एक राजा हो। And we may not be living in a palace. और शायद से हम किसी राजमहल में नहीं रहते, And we may not be having hundreds of servants. और हमारे पास 100 दास ना हो, But in the spirit, the Bible says, He has made you
king and priest unto God. पर बाइबल कहती है कि उसने हमें अपने पिता परमेश्वर के लिए राजा और याजक भी बना दिया। So when the Bible says it, we agree with it, we accept it. तो जब बाइबल कहते हैं तो हम उसके साथ स्वीकार करते हैं, हम उसे मान लेते हैं। Let's see Romans 5:17. आइए हम रोमियो 5:17 देखेंगे। It says, for if by one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and the gift of righteousness will rule in life by one Jesus Christ. क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उसी एक के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही जीवन में राज्य करेंगे। So first he makes us a king, पहले वो हमें एक राजा बनाता है, and then he says you will rule in life. और फिर वो हमें कहता है कि तुम जीवन में राज्य करोगे। Not when you go to heaven. तब नहीं जब आप स्वर्ग में जाएंगे। He makes us a king and then he says you will rule in life. वो हमें पहले राजा बनाता है और फिर हमसे कहता है कि तुम जीवन में राज्य करोगे। So all of us are supposed to rule in life. तो हम में से हर एक व्यक्ति को राज्य करना है जीवन में। All of us. हम में से हर एक व्यक्ति No को, matter where you're working, भले आप कहीं भी काम क्यों ना no कर रहे matter हो, what your position, भले आपका पद कुछ क्यों ना हो, no matter what your salary, भले आपकी तनख्वाह कुछ भी क्यों ना हो, you are supposed to rule in life. आपको जीवन में राज्य करना है। And like I said, ruling not over people, और जैसे मैंने कहा, लोगों के ऊपर राज्य करना नहीं, ruling over Satan, शैतान के ऊपर राज्य करना, ruling over sin, पाप के ऊपर राज्य करना, ruling over the challenges of life. जीवन की चुनौतियों के ऊपर राज्य करना। They say there's a pandemic, you are a king, you rule over that situation. वो लोग कहते हैं कि यहाँ पे एक महामारी है, तो पर आप एक राजा है और आपके और उस चुनौतियों के ऊपर आप राज्य करते हैं। They say there is unemployment, you rule over that situation. वो कहते हैं यहाँ बेरोजगारी है, पर आप उस स्थिति के ऊपर राज्य करते हैं। Praise God. परमेश्वर को स्तुति But हो। we don't rule over people. पर हम लोगों के ऊपर राज्य नहीं करते। We rule over Satan, we rule over sin. हम शैतान के ऊपर और पाप के ऊपर राज्य करते हैं। We rule over sickness and we rule over poverty. हम बीमारी और गरीबी के ऊपर राज्य करते हैं। So whatever Satan throws against you, we rule over it. तो जो भी कुछ शैतान हमारी ओर फेंकता है, हम उन सब चीजों के ऊपर राज्य करते हैं, Because you are a king. क्योंकि आप एक राजा है। Now I want to cover the 8th aspect of a king. 8th aspect. और मैं राजा का 8वां पहलू मैं आज से बांटूंगा। Let's see. आइए देखेंगे। Next slide. A king's true attractiveness flows from his spirit. राजा का सच्चा आकर्षण उसकी आत्मा से प्रकट होता है। So different from the so-called kings of today. ये जो आजकल के जो अपने आप को जो राजा मानते हैं, उनसे कितना अलग है। A king's true attractiveness doesn't come from exterior things, it flows from his spirit. राजा का सच्चा आकर्षण बाहरी चीजों से नहीं आता, पर उसकी आत्मा से, उसकी अंदरूनी चीजों से प्रकट होता है। It's good to dress well. ये बहुत अच्छा है कि हम अच्छे कपड़ों को पहने। It's good that your hair is set ये nicely. अच्छी बात है कि आपके बाल भी अच्छी तरह से बनाए गए हैं। It's good that you have used a good perfume अब बहुत अच्छी बात है कि अगर आपने अच्छा परफ्यूम लगाया है तो and that your height is good आपका कद अच्छा है, and you look great आप बहुत अच्छे दिखते हैं, and all that is important. और बहुत ये सब महत्वपूर्ण भी है। But a king's true attractiveness comes from that person's spirit. पर एक राजा का सच्चा आकर्षण उसकी आत्मा से आता है। How is your spirit? आपकी आत्मा कैसी है? We can see your body looks great, हम आपके देह को देख सकते हैं, आपका शरीर बहुत अच्छा दिखता है, your height looks great, आपका कद अच्छा है, your weight is okay, आपका वजन भी ठीक ठाक है, your shoes look great, आपके जूते चमकते हैं, your shirt looks great. आपका शर्ट अच्छा दिखता है। But where does your attractiveness come from? How can a person say that you're really attractive? पर आपका सच्चा आकर्षण कहाँ से आता है? कैसे एक व्यक्ति बोल सकता है कि आप सचमुच आकर्षित है? It comes from the person's spirit. ये उस व्यक्ति की आत्मा से आता है। A person's spirit decides how attractive the person is. एक व्यक्ति की आत्मा इस बात का निर्भर करती, एक
इसका निर्धारित करती है कि वो व्यक्ति कितना आकर्षित है। Next slide. अगला स्लाइड। इसको ध्यान से देखिए. A king's beauty and dignity comes from his spirit. एक राजा की सुंदरता और गरिमा उसके आत्मा से आती है। How much time we spend on the outside. कितना समय हम बाहरी चीजों के ऊपर बिताते हैं। And it's okay, but your priority is your spirit, because your beauty and your dignity comes from your spirit. ये बात ठीक है, बट आपकी प्राथमिकता आत्मा होनी चाहिए, क्योंकि आपकी सुंदरता और आपकी गरिमा आपकी आत्मा से आती है। So a king's beauty, a king's dignity comes from within his spirit, from within her spirit. तो एक राजा की सुंदरता और उसकी गरिमा उसकी आत्मा से आती है। Amen. Amen. We'll come back to that 2 points. Let's go to 1 Peter 3:1. हम फिर से उसके ऊपर आएंगे। हम देखेंगे पहला पतरस 3:1। Now, likewise, you wives, be in subjection to your own husbands. हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। If any obey not the word, that they also without the word be won by the behavior of their wives. Next slide. इसीलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसा हो जो वचन को न मानता हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन से द्वारा खींच जाए। That means without the words a person can be influenced. इसका अर्थ है कि शब्दों के बगैर भी एक व्यक्ति को ऊपर प्रभाव डाला जा सकता है। It says, while they behold your chaste behavior coupled with fear. वो कहता है कि जब तुम्हारा भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन को अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींचे जाए। That means behavior. इसका अर्थ है कि आपका चाल चलन। Verse 3. वचन 3। Now look at this. Whose adorning, let it not be outward adorning of plaiting the hair, or of wearing of gold, or of putting on of apparel. और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। Is he saying that plaiting of hair is wrong? क्या वो कह रहा है कि बाल गूंथना गलत है? He's not saying that plaiting of hair is wrong. वो ये नहीं कह रहा कि बाल गूंथना गलत है। He's not saying that wearing gold is wrong. वो ये भी नहीं कह रहा कि सोने के गहने पहनना गलत है। He is not saying that putting on of apparel is wrong. वो ये नहीं कह रहा कि भांति भांति के कपड़े पहनना गलत है। He said your beauty, primarily it doesn't come from the outside. वो कहता कि आपकी जो सुंदरता है वो प्राथमिक तरीके से वो आपके बाहर से नहीं आती। Although you can work on your hair, हाँ, आप अपने बालों के ऊपर काम कर सकते you हैं। can work on your clothes, आप अपने कपड़ों पर काम कर सकते हैं। you can work on your jewelry. आपके गहनों के ऊपर आप काम कर सकते हैं। This is for brothers and sisters both. ये भाई और बहनों दोनों के लिए है। You can work on the outside. आप बाहरी चीजों के ऊपर काम कर सकते हैं। But what does the next verse say? पर अगला वचन क्या कहता है? But let it be the hidden man of the heart, वरन तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व, in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price. नम्रता और मन की दीनता के अविनाशी सजावट से सुज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। So what is he saying? तो क्या कह रहा है? He looks at, this is not just talking about ladies, this is talking about kings, boys and girls, both, men, women, both. तो ये सिर्फ स्त्रियों के बारे में बातें नहीं कर रहा, ये राजाओं के बारे में बात कर रहा है, स्त्री पुरुष दोनों के बारे में बात कर रहा है। Don't say that you are beautiful or handsome because of your clothes. आप ये मत कहिए कि आप अपने कपड़ों की वजह से आप सुंदर है। Very good verse for those who are not married. ये अच्छा वचन है उनके लिए जो उनका शादी नहीं हुआ। जिनका नहीं हुआ है, okay? बहुत अच्छा verse है, very nice. So don't say that a man's handsomeness or a lady's beauty, it doesn't come from the outside. तो ये नहीं कहता कि किसी स्त्री या पुरुष की सुंदरता उनके भारी चीजों के ऊपर आती है। It doesn't come from the clothes they wear. ये उससे नहीं आता जो कपड़े वो पहनते हैं। It doesn't come from the ornaments they wear. जो गहने वो पहनते उससे नहीं आता। It doesn't come from what they do with their hair. वो उससे नहीं आता कि अपने बालों के साथ क्या करते हैं।
all that is good. ये सब ठीक है, But beauty, where does it come from? पर सच्ची सुंदरता कहाँ से आती A है? king's beauty, where does it come from? एक राजा की सुंदरता कहाँ से आती है? But let it be the hidden man of the heart. पर वो मन का छुपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व हो। Talking about your spirit. ये आपकी आत्मा के बारे में बात So कर रहा है। true beauty comes out of the spirit. तो आपकी सच्ची सुंदरता आपकी आत्मा से बाहर निकलती है। And so you got to know whomever you plan to marry, you got to know. It looks great, but I want to know how the spirit is. तो अगर आप योजना बना रहे हैं शादी करने का, तो आपको ये जानना जरूरी है कि हाँ, बाहर से तो सब ठीक लग रहा है, पर मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी आत्मा कैसी है। Let's go to verse 3 again. इसको ध्यान से देखिए. No, verse 3. Yeah. वचन 3 पे जाएंगे फिर से। This is talking about a king whose beauty, let it not be outward. वो एक राजा के बारे में बात कर रहा है। वो कहता है कि जिसकी दिखावट बाहरी ना हो। A king's beauty doesn't come from the outside. एक राजा की सुंदरता बाहरी रूप से नहीं आती। A man's handsomeness doesn't come from the outside. एक पुरुष की सुंदरता उसके बाहरी रूप से नहीं आती। But remember how many people spend so much of their time on the outside. पर बहुत सारे लोग हैं जो अपना बहुत एक समय अपने बाहरी चीजों को ठीक करने में लगाते Whose हैं। adorning, let it not be outside. और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। फिर कौन सा होना चाहिए? Verse 4. वचन 4। But let it be the hidden man, your spirit, which in the sight of God is of great value. वरन तुम्हारा छुपा हुआ, तुम्हारी आत्मा, वरन तुम्हारा छुपा हुआ गुप्त मनुष्य हो जो परमेश्वर की दृष्टि में बड़ा मूल्य रखता है। So a king's beauty comes from the spirit. तो एक राजा की सुंदरता उसकी आत्मा से आती है। A king's dignity comes from the spirit. एक राजा की गरिमा उसकी आत्मा से आती है। A king's attractiveness comes from the spirit. एक राजा का आकर्षण उसकी आत्मा से आता है। Because it's your spirit that will sustain you. कि यह आपकी आत्मा ही है जो आपको संभाले रखेगी। Look, sustain no one. जो आप कैसे दिखते हैं ये किसी को भी संभाल नहीं सकते। It is your spirit that will sustain you. ये आपकी आत्मा है जो आपको संभाले रखेगी। Now I'm not against looks or anything. तो मैं आप कैसा दिखते हैं मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। I'm saying what will sustain you is your spirit. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो आपको संभाले रखेगा वो आपकी आत्मा है। Of course we work on our body. हाँ, हम अपने शरीर पर काम तो करते We हैं। dress well. हम अच्छे से कपड़े पहनते We हैं। go to the gym. हम जिम जाते हैं। We take care of our body. हम अपने शरीरों का ध्यान रखते But हैं। what will sustain you is not your body. It is your spirit. पर जो चीज आपको संभाले रखेगी वो आपका शरीर नहीं वरन वो आपकी आत्मा है। Next line. अगला स्लाइड। Every wise king makes spiritual development his priority. हर बुद्धिमान राजा आत्मिक विकास को अपनी प्राथमिकता बनाता है। Amen. He says, what is valuable in the eyes of God? In the eyes of God, your spirit has more value. It is more value. परमेश्वर की दृष्टि में क्या ज्यादा मूल्यवान है? परमेश्वर की दृष्टि में आपकी आत्मा ज्यादा मूल्यवान है। So every wise king, male, female, they make spiritual development their priority. तो हर एक बुद्धिमान राजा, स्त्री या पुरुष, हर एक बुद्धिमान राजा आत्मिक विकास को अपनी प्राथमिकता बनाता है। So true attractiveness is actually comes from your spirit. तो इस अच्छा आकर्षण आपकी आत्मा से आता है। We want to know how attractive your spirit is. हम जानना चाहते हैं कि आपकी आत्मा कितनी आकर्षित है। So every wise king makes spiritual development his priority. तो हर एक बुद्धिमान राजा अपने आत्मिक विकास को अपनी प्राथमिकता बनाता है। Let me show you some wise people. Luke 1:80. मैं आपको कुछ बुद्धिमान लोगों को दिखाना चाहूंगा। लूका 1:80। This is talking about John the Baptist. यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में बात कर रहे हैं। The child grew and waxed strong in spirit. और वो बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत हुआ। You know, John the Baptist का ड्रेसिंग बताता हूं आपको. He was wearing camel hair. तो जो यूहन्ना बपतिस्मा था वो ऊंट के बालों को पहनता था। Not at all very attractive. ये कुछ ज्यादा अच्छा नहीं दिखता था। But the entire world came to him. पर पूरा दुनिया उसके पास आया। Hallelujah. He ate locusts. वो टिड्डों को खाता था। But the entire world came to him for impact. पर पूरा दुनिया उसके पास आई प्रभाव के लिए। Why they came to him for impact? तो वो उसके ओर क्यों आई प्रभाव के लिए? Because he became strong in spirit.
spirit. क्योंकि वो आत्मा में बलवंत होते गया। See, we take care of our body, हम अपने शरीरों का ध्यान रखते हैं, we wear the best, हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, we eat nicely, हम बहुत अच्छा खाना खाते हैं, but the priority is a spirit. पर प्राथमिकता आत्मा है। You are a spirit being and you live in a physical body. आप एक आत्मा है और आप एक शरीर में रहते हैं। You cannot make your physical body more important than your spirit. आप अपने शरीर को आपकी आत्मा से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं बना सकते। Amen. Amen. So, talking about John the Baptist, it says, and the child grew and he became strong in spirit. He became strong in spirit and was in the desert till the day of his manifestation unto Israel. वो यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में बात करते हैं कि वो बालक बढ़ता और आत्मा में वो बलवंत होते गया और इज़राइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। Next verse, talking about Jesus Christ, अगला Luke वचन। 2:40. अगला वचन, और ये यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा है, लूका 2:40। See, every wise king have same pattern. देखिए, हर एक बुद्धिमान राजा के चाल चलन एक जैसे ही है। They quickly understand what is important, what is not important. They quickly understand. वो बहुत जल्द से समझ जाते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या महत्वपूर्ण नहीं है। They quickly know where to invest and where not to वो invest. बहुत जल्द से समझ जाते हैं कि कहाँ पे निवेश करना है, कहाँ निवेश नहीं करना है। Look at Jesus, Luke 2:40. यीशु की ओर देखेंगे, दूसरा लूका 2:40। Same thing. And the child grew and became strong in spirit, filled with wisdom, and the grace of God was upon him. और यीशु मसीह के बारे में वही कहते हैं कि और बालक बढ़ते गया और आत्मा में बलवंत होता गया और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया। See, again, whether it's John the Baptist, whether it's Jesus Christ, they all becoming strong in spirit because a king's true attractiveness comes from the spirit. भले यूहन्ना बपतिस्मा हो या यीशु मसीह हो, हर एक बुद्धिमान राजा अपनी आत्मा को प्राथमिकता बनाता है क्योंकि आपकी आत्मा से आपकी आकर्षण आती है। How beautiful or attractive is your spirit? आपकी आत्मा कितनी सुंदर या आकर्षित है। How much are you working on spiritual development? आप अपनी आत्मिक उन्नति के लिए आप कितना काम करते हैं। Because charm will fade away, क्योंकि आपका कैसा दिखते हैं आप वो चला जाएगा, handsomeness will fade away, आपकी सुंदरता चली जाएगी, beauty will fade away. आप कैसा दिखते हैं वो चला जाएगा। What remains is your spirit. तो जो रहेगा वो है आपकी आत्मा। And so every wise king makes spiritual development their priority. और हर एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी आत्मिक उन्नति को अपनी प्राथमिकता बनाता है। Next verse. अगला वचन। See, because we have lot of fake kings who just focus on the outside. हमारे पास बहुत सारे नकली राजा भी है जो सिर्फ बाहरी चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं। And that influences the younger generation to go only for exterior things. That's a deception. और वो जवान पीढ़ी के ऊपर एक प्रभाव डालती है जो कहती है कि तुम्हें सिर्फ बाहरी चीजों के ऊपर ध्यान देना है, और वो एक भरमाना है। So 1 Timothy 4:7 says, but refuse profane and old wives' fables and exercise yourself to godliness. पहला तीमुथियुस 4:7 पर अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानी से अलग रहे और भक्ति के लिए अपना साधन कर। You know, over certain period of time, when you want to have spiritual development, there are certain things we have to refuse. We have to learn to say no. अगर आप चाहते हैं कि आपको समय के साथ साथ आपकी आत्मिक उन्नति भी बढ़ती रहे तो आप में कुछ चीजों को ना बोलना होगा, कुछ चीजों से हमें अलग रहना होगा। We have to learn to say no to certain people. हमें कुछ लोगों को ना बोलना सीखना होगा। Because if you want to develop your spirit, you have to refuse certain things. You have to say no to certain things. अगर आप अपनी आत्मा की उन्नति चाहते हैं तो आपको कुछ लोगों को कुछ चीजों को ना बोलना होगा। He says, refuse certain things and exercise in making your spirit strong. वो कहता है कुछ चीजों से अलग रहे और भक्ति के लिए अपना साधन कर। He said, exercise, do spiritual exercises to make your spirit वो strong. कहता है कि आत्मिक कसरतों को करो ताकि तुम्हारी आत्मा मजबूत हो जाए। He said, do this exercise. वो कहता है कि तुम इन कसरतों को करो, He said, make your spirit strong. अपनी आत्मा को मजबूत बनाओ, Because you are a spirit being and your beauty comes from your spirit. क्योंकि तुम एक आत्मा हो और तुम्हारी सुंदरता तुम्हारे आत्मा से ही आती है, That is what will sustain you. और यही वो आपको संभाले रखेगा। You know,
no matter how many people say we are attractive or good looking, true beauty is in the presence of God. भले कितना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने सारे लोग आकर हमें कहे कि हम अच्छे दिखते हैं, पर सच्ची सुंदरता परमेश्वर की उपस्थिति में है। He says, look at this lady, the hidden man of her heart, this makes this woman, this man beautiful in the sight of God. That is true beauty. इस स्त्री या पुरुष को देखिए, जो उसका गुप्त मनुष्यत्व है, उसकी आत्मा है, वो परमेश्वर को सुंदर, वो उसको सुंदर दिखा दिए परमेश्वर के सामने। He said, exercise if you want to become strong. वो कहता है कि अगर तुम बलवंत होना चाहते हो, तुम्हें कसरतें करनी होंगी। So there are these spiritual exercises. तो ये कुछ आत्मिक कसरतें हैं। There are these spiritual exercises. यहाँ कुछ आत्मिक कसरतें हैं। You know, there were some soldiers of Israel. कुछ इजराइल के सैनिक थे। They were very busy. और वो बहुत व्यस्त थे। They didn't have time for spiritual things. उनके पास आत्मिक चीजों के लिए समय नहीं था। And one day Goliath showed up. और एक दिन गोलियत आया। And all of them ran away. और सब भाग गए। There was this young boy named David. और यहाँ पे एक जवान लड़का था, उसका नाम था दाऊद। And one of the things that David did, he would work diligently on spiritual exercises. और दाऊद के बारे में एक बात खास ये थी कि वो आत्मिक चीजों पर लगन से काम करता था। And when there was an actual challenge, everything else went away. Only the ones with strong spirit could deal with the challenge. और जब चुनौतियां आई तो सब भाग गए, पर जिसके पास मजबूत आत्मा थी वो उन चुनौतियों का सामना करने आया। So there are certain things we have to refuse. तो कुछ चीजों को हमें ना बोलना होगा। And we have to exercise ourselves to make our spirit strong. और हमें कसरत करनी होगी कि हम अपनी आत्मा को मजबूत बनाएं। For example, speaking in tongues. उदाहरण के तौर पर अन्य भाषा में बात करना। These are exercise we do. We speak in tongues every day. We do that exercise. ये कसरतें हैं जो हम हर दिन करते हैं, हम अन्य भाषा में हर दिन बात करते हैं। Every day we hear the word. We are doing that exercise. We are making our spirit strong. हर दिन हम वचन को सुनते हैं, हम ये कसरतों को हर दिन करते हैं, हम अपनी आत्मा को मजबूत बनाते हैं। Every day we are studying the word. हर दिन हम वचन का अध्ययन करते हैं। He said, exercise to make your spirit strong. Exercise to make your spirit strong. अपनी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए तुम कसरतें करो। Verse 5. वचन 5। इसको देखिए, for bodily exercise, which is important, profits a little, but godliness or spiritual exercises is profitable for all things, having promise of the life that now is and of that which is to come. क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के आने वाले जीवन के भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। He says spiritual exercises will help you not only in this life but also in the life to come. वो कहता है कि आत्मिक कसरतें तुम्हें सिर्फ इस जीवन में नहीं, पर आने वाले जीवन में भी मदद करेंगी। So think about a person who's exercising, doing spiritual exercise in his house. और आप इस व्यक्ति के बारे में सोचिए जो आत्मिक कसरतों को करता है अपने घर में। He gets up early every day and he speaks in tongues. He's exercising tongues. वो हर सुबह जल्दी उठता है और अन्य भाषा में प्रार्थना करता है। While another believer says, I don't have time for all this, this believer gets up early and is speaking in tongues. दूसरा विश्वासी कहता है कि मुझे इन सारी चीजों के लिए समय नहीं है, पर ये विश्वासी सुबह उठकर अन्य भाषा में प्रार्थना करता है। Another believer, he takes 5 chapters and is reading his word daily, while another believer says, I don't have time for all this. यहाँ एक विश्वासी है जो 5 अध्याय को लेकर हर दिन उन पर अध्ययन करता है, और दूसरा कहता है कि मुझे इन बातों के लिए समय नहीं है। Amen. Amen. We must develop our spirit. हमें अपनी आत्मा को बनाना होगा, Because that is the need of the hour. क्योंकि ये आज के समय की मांग है। It says bodily exercise is important, but it profits only little. वो कहता है कि देह की कसरतें अच्छी है, पर उसका लाभ बहुत छोटा है। He says godliness or spiritual exercises or strong spirit is profitable for all things. पर भक्ति, आपकी आत्मा या आपकी मजबूत आत्मा सब बातों के लिए लाभदायक है। You can face any demon that comes to your house. तो हर एक उस दुष्ट आत्मा का आप सामना कर सकते हैं जो आपके घर के सामने आता है। Any challenge that comes to this world,
whether it's inflation, whether it's corona, whatever it is, your strong spirit can deal with it. आपकी मजबूत आत्मा हर एक चुनौतियों का सामना कर सकती है, भले वो महंगाई हो, भले कोरोना हो, हर एक चुनौतियों का सामना कर सकती है। Your strong spirit can deal with any challenge Satan throws against your house, any challenge. शैतान जो भी चुनौतियों को आपके सामने फेंकता है, आपकी मजबूत आत्मा सबका सामना कर सकती है। Your spirit can take it, your spirit can deal with it. आपकी आत्मा से ले सकती है, आपकी आत्मा उसे सुलझा सकती है। So you must have a strong spirit. तो आपको एक मजबूत आत्मा होना जरूरी है। It doesn't matter what our height is. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा कद क्या है। It doesn't matter how tall we are or how short we are. What matters is how strong your spirit is. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम कितने ऊंचे या कितने कद में छोटे, जो बातें मायने रखती है वो आपकी आत्मा है। You must be able to face those demons that comes against you. आप जो शैतान के दुष्ट आत्मा आपके होते हैं, आपको उनका सामना करना होगा। The Bible says, resist the devil. बाइबल कहती है कि तुम शैतान का सामना करो। How will you resist? कैसे तुम सामना करोगे? Will you do it with a physical weapon? क्या आप एक शारीरिक हथियार को लेकर आओगे? Will you beat him? क्या आप उसे मारोगे? Will you punch him? क्या आप मुक्का मारोगे? Will you kick him? ऐसा आप लात मारोगे? झाड़ू मारेंगे? What will you do? How will you do it? आप क्या करेंगे? आप कैसे करेंगे? You know, when a person's spirit is strong, a person's words will reveal how strong a man's spirit is. एक व्यक्ति के शब्द ये दिखाएंगे कि वो व्यक्ति की आत्मा कितनी शक्तिशाली है। You can't beat the devil. आप शैतान को मार नहीं सकते। You can't tell him, please जाना यार. आप उसे नहीं बोल सकते आप जाइए ना। Please go, Satan. आप जाइए शैतान। How many days you're staying in my house? आप कितने दिन मेरे घर में रहेंगे? थोड़ा तो दया कर शैतान. Yeah, can you talk to him like that? क्या आप उससे ऐसे बात कर सकते हैं? Will he show you pity? क्या वो आपके ऊपर दया दिखाएगा? How do you deal with him? आप कैसे उसका सामना करेंगे? It is a strong spirit that deals with anything Satan throws against you. ये एक मजबूत आत्मा है जो शैतान की हर एक चीजों के ऊपर सामना करती है। आपकी चंगाई कहां पर है? Where is your healing? आपकी चंगाई कहाँ पर है? It's in your spirit. वो आपकी आत्मा में है। It's not in heaven. वो स्वर्ग में नहीं है, It's in your spirit. आपकी आत्मा में है। Where is your prosperity? आपकी समृद्धि कहाँ है? Your prosperity is in your spirit. आपकी समृद्धि आपके आत्मा में है। Where is your divine connections? Where is it? Where is your next opportunity? It's all in your spirit. आपके दिव्य संपर्क, आपके अगले मौके वो कहाँ पर है? वो सब आपके आत्मा में है। Where is your next step? आपका अगला कदम कहाँ है? Where is your next step? आपका अगला कदम कहाँ पर है? Where is it? Is it in the third heavens? क्या वो तीसरे स्वर्ग में है? Is it in some other country? किसी और देश में है? Where is your next step? आपका अगला कदम कहाँ पर है? Your next step is in your spirit. आपका अगला कदम आपकी आत्मा में है। He says, work on your spirit. वो कहता है कि अपनी आत्मा पर काम करो। Like a person goes to the gym ऐसे एक व्यक्ति जिम जाता है and he works on his body. और वो अपने शरीर पर काम करता है। He says, go and work on your spirit. Make your spirit strong. वो कहता है जाओ और अपनी आत्मा पर काम करो और अपनी आत्मा को मजबूत बनाओ। The days ahead आने वाले दिन is going to be glorious for those whose spirit are strong. जिनकी आत्मा मजबूत है उनके लिए आने वाले दिन महिमावंत होंगे। But those whose spirit are not strong, पर जिनकी आत्माएं मजबूत नहीं है, they won't be able to handle the pressure वो उस दबाव को झेल नहीं पाएंगे or handle what Satan is sending against the earth. और शैतान जो चीजें पृथ्वी की ओर भेज रहा है उन चीजों को झेल नहीं पाएंगे। You know, these Israeli soldiers, they were tall people, 6 feet, उससे भी बड़ा, tall people. ये जो इजरायली सैनिक थे वो बहुत ऊंचे कद वाले मजबूत लोग थे। And morning, night, they're focusing on diet. और दिन रात वो क्या खाना है क्या पीना है उसके ऊपर ध्यान And देते थे only focus on the outside. और सिर्फ बाहरी चीजों के ऊपर ध्यान देते थे। And when they saw Goliath, सब भाग गए. और जब उन्होंने गोलियत को देखा सब भाग गए। When they saw Goliath, all of them ran away. जब उन्होंने गोलियत को देखा सब भाग गए। There had to be one young boy, वहां पे एक जवान व्यक्ति को होना था। young boy, जवान व्यक्ति in his shorts. अपने शॉर्ट्स में आया था। You know what's different about David? आपको पता है दाऊद के बारे में क्या अलग है? What soldiers couldn't do? जो सैनिक नहीं कर पाए। He had the courage to talk. उसके पास बोलने का हियाव था। They were talking behind Goliath's back.
वो गोलियत के पीठ पीछे बातें कर रहे थे। They were repeating what Goliath was saying. वो उन बातों को दोहरा रहे थे जो गोलियत कह रहा था। A small boy had the courage to talk to Goliath. पर एक छोटे जवान व्यक्ति के पास वो हियाव था कि वो गोलियत से बातें करे। But those words cannot come out unless your spirit is strong. It's very difficult. पर वो शब्द तब तक बाहर नहीं आ पाएंगे जब तक आपकी आत्मा मजबूत नहीं है। बहुत Unless कठिन you है। have exercised your spirit, those words cannot come out in front of Goliath. It can't come out. जब तक आप अपनी आत्मा में उन कसरतों को नहीं करते तब तक वो शब्द गोलियत के सामने बाहर नहीं आ सकते। He says exercise, have spiritual exercises. वो कहता है कि तुम कसरत करो, आत्मिक कसरतों को करो। And nobody is watching you. It's okay. और आपको कोई नहीं देख रहा, ठीक है। कोई नहीं जानता दाऊद कौन है। गोलियत आ गया, सबको पता है दाऊद कौन है अभी। Everybody knows who Goliath is. Your challenges will make you famous. सब जानते हैं कि दाऊद कौन है। आपके चुनौतियां ही आपको प्रसिद्ध बनाएंगे। Goliath made David famous. और गोलियत नहीं दाऊद को प्रसिद्ध बनाया। Nobody sees you. कोई भी आपको नहीं देख रहा। You are in your house. आप अपने घर में हैं Or you are exercising. और आप कसरत कर रहे हैं। You are nobody. We are not doing it for popularity. You are in your house and you are exercising. हम प्रसिद्धता के लिए नहीं कर रहे। आप अपने घर में हैं और आप घर में कसरत कर रहे You हैं। are doing spiritual exercises. आप आत्मिक कसरतों को कर रहे हैं। You are doing spiritual exercises. आप आत्मिक कसरतों को कर रहे हैं। While the entire world is focusing on the outside, जहां पूरी दुनिया बाहरी रूप के ऊपर ध्यान देके रखी है, you are working on the inside. आप अंदरूनी चीजों के ऊपर You're ध्यान दे रहे making हैं। your spirit strong. आप अपनी आत्मा को मजबूत बना रहे हैं। Daily you're making your spirit strong. आप हर दिन अपनी आत्मा को मजबूत बनाते हैं। Amen. You don't have to pretend to talk to Goliath. When you see Goliath, your spirit is so strong that words will begin to come out. आपको इस बात का दिखावा नहीं करना पड़ेगा कि आप गोलियत से बात कर रहे हैं। आपकी आत्मा इतनी ज्यादा मजबूत है कि गोलियत सामने आते ही वो शब्द आपसे बाहर निकलते हैं। The words will just flow out. वो शब्द सिर्फ आपसे बाहर निकलेंगे। Because you have in the secret, you have worked on your spirit. क्योंकि आपके निजी समय में आपने आपकी आत्मा पर कार्य किया है। Nobody is looking at you. कोई भी आपकी ओर नहीं देख रहा। And in your house, you're working on your spirit. और अपने घर में आप अपनी आत्मा पर काम कर रहे हैं। You're working in tongues. आप अन्य भाषा में बात कर You're रहे हैं। working on the word. आप वचन पर काम कर रहे हैं। You're working on confession. आप अपने अंगीकार पर ध्यान दे रहे You're हैं। ministering to the Lord. आप परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं। Nobody knows. कोई नहीं जानता। But when the challenge comes, everybody will know. पर जब चुनौतियां आएंगी तब सबको मालूम पड़ेगा। Nobody knew who David was. कोई नहीं जानता था कि दाऊद कौन है। When Goliath came, everybody knows who David is. पर जब गोलियत आया अभी सब जानते हैं दाऊद कौन है। So I encourage you. तो मैं आपको बहुत प्रोत्साहित करूंगा। Your true beauty is in your spirit. आपकी असली सुंदरता आपके आत्मा में है। If you want to go long, work on your spirit. If you are interested in temporary things, then don't work on your spirit. अगर आप लंबा जाना चाहते हैं तो आप अपनी आत्मा पर ध्यान दें। अगर आपको कुछ भौतिक चीजों के ऊपर ध्यान है आपका, तो आप अपने बाहरी रूप पर ध्यान दे सकते हैं। One of the symptoms that the spirit is weak is carelessness with the mouth. और एक चिन्ह ये दिखाता है जो आप अपने आत्मा में कमजोर है कि ये है कि आप अपने मुंह के साथ सावधान नहीं। When the body turns yellow, it's a symptom कि jaundice हुआ है। जब आपका पूरा शरीर पीला पड़ता है तो ये इस बात का ये चिन्ह है कि आपको जॉन्डिस हुआ है। When a person's mouth is careless, पर जब एक व्यक्ति का मुंह ध्यानपूर्वक नहीं रहता, very careless, बहुत बेजवाबदार रहता है, that is a symptom that the spirit is very weak. ये उस बात का चिन्ह है कि उसकी आत्मा कमजोर है। Because you only know how strong a spirit is when a person talks. क्योंकि आप तभी जानेंगे कि उस व्यक्ति की आत्मा कितनी मजबूत है जब वो व्यक्ति बात करेगा। Not on Sunday, रविवार को नहीं, but when he sees a challenge, पर जब वो चुनौतियों को देखता है, when things are not working, जब चीजें काम नहीं कर रही, when Goliath is shouting, जहाँ पे गोलियत चिल्ला रहा है, at such times when a person talks, it will show how strong the spirit is. और इन समयों में जब वो व्यक्ति बात करेगा वो दिखाएगा कि उसकी आत्मा कितनी मजबूत है। Amen. Amen. Again, इसको ध्यान से सुनिए। Carelessness of the mouth is a symptom that the spirit is weak. अपने मुंह के साथ सावधान न रहना ये इस बात का चिन्ह है कि आपकी आत्मा कमजोर है। Next slide. अगला स्लाइड। Your spiritual capacity determines your dimensional shift.
आपकी आत्मिक क्षमता आपके आयामी परिवर्तन को निर्धारित करती है। You know, when people get a promotion, they give testimony. जब लोगों की पदोन्नति होती है तो वो लोग आके गवाही देते हैं। From the manager, when they become to senior manager, they give testimony. जब वो मैनेजर से सीनियर मैनेजर बनते हैं तो वो आके गवाही देते हैं। So everybody likes to shift dimensions. It's a good thing. Everybody likes to shift dimensions. तो हर एक व्यक्ति को अपने आयामों को बदलना अच्छा लगता है। Nobody keeps quiet. Everybody gets excited with their dimension shift. I was at level 4, praise God, now I'm at level 5. हर एक व्यक्ति को अच्छा लगता है जब उनके आयाम परिवर्तित होते हैं। पहले वो चौथे स्तर पर थे, अभी पांचवें स्तर पर है। You know, with God, there is no limit for dimensions, no limit. परमेश्वर के साथ आपकी कितना ऊपर जा सकते हैं आप आयामों में, इसकी कोई सीमा नहीं है। There is no limit for prosperity. समृद्धि की कोई सीमा नहीं है। There is no limit for growth. उन्नति के लिए कोई सीमा नहीं है। Some schools after 12th you have to leave the school because after 12th you have to go to another college. कुछ विद्यालय ऐसे होते हैं जहाँ पे आप 12वीं तक पढ़ सकते हैं और 12वीं के बाद आपको कहीं और जाना होता है। Because they don't have courses after 12th. क्योंकि उनके पास 12वीं के बाद पढ़ाने के लिए आपके पास कुछ होता नहीं है। In the kingdom there is no limit. There is no limit to dimensions. You can go as high as you want. और राज्य में आयामों की कोई सीमा नहीं है। आप जितना ऊंचा जाना चाहे आप उतना ऊंचा जा सकते हैं। But what determines your dimensional shift? पर आपके आयामी परिवर्तन को क्या निर्धारित करता है? Is it your color? क्या आपका रंग है? Is it your jewelry? क्या आपका गहना है? Is it your clothes? क्या आपके कपड़े हैं? What determines your dimensional shift? तो आपके आयामी परिवर्तन को क्या निर्धारित करता है? Is it what we do with our hair? या इसमें है क्या कि हम अपने बालों के साथ क्या करते हैं? Is it what we do with our body? या हम अपने शरीरों में क्या करते हैं? What determines your dimensional shift? आपके आयामी परिवर्तन को क्या निर्धारित Your करता है? spiritual capacity. आपकी आत्मिक क्षमता। You know, man looks at so many things. How big is the person's wallet? मनुष्य बहुत सारी चीजों को देखता है कि वो उस व्यक्ति का बटुआ कितना बड़ा है। How many followers they have on Instagram? उनके इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर है? How many people clap for them? कितने लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं? How many people respect them? कितना लोग उनका आदर करते हैं? And so many things people look at. और बहुत सारी चीजें जो लोग देखते हैं। But God is consistently looking at your spirit. पर परमेश्वर निरंतर रूप से आपकी आत्मा की ओर देखता है। 50 people are looking at your wallet. कितना बड़ा हो रहा है? 50 लोग आपके बटुए को देखते कितना मोटा और बड़ा हो रहा है। Another 50 are seeing how famous you're becoming. और अगले 50 देखते कि आप कितने प्रसिद्ध हो रहे हैं। God is looking at your spirit. परमेश्वर आपकी आत्मा को देखता है। God is looking. It doesn't matter to him what dress you wear. उससे इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कपड़े पहनते हैं। He's looking at your spirit. वो आपकी आत्मा को देखता है। Because he determines your dimensions according to your spiritual capacity. क्योंकि वो आपके आयामी परिवर्तनों को आपकी आत्मिक क्षमता से निर्धारित करता है। Okay, 1 Samuel 16:7. पहला शमूएल 16:7। And the Lord said unto Samuel, look not, speaking about David's first brother, look not on Eliab's countenance or on the height of his stature, because I have refused him. For the Lord sees not as man sees, for man looks on the outward appearance. Man constantly looks on the outside. Man keeps looking on the outside. Man keeps working on the outside. But the Lord, same thing Peter said, but the Lord is constantly looking at your spirit. How strong is your spirit? How strong is your spirit? Man keeps looking on the outside. 100 things on the outside. Man keeps looking at it. They keep comparing. They keep judging. But God is looking at the spirit. God says, how strong is this person's spirit? How strong is this lady's spirit? How strong is this child's spirit? That's what God is looking at. परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ये दाऊद के बड़े भाई के बारे में बात कर रहे हैं, ना तो एलियाब का रूप और उस रूप पर दृष्टि कर और ना उसके ढील डोल और ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा को देखना मनुष्य का नहीं है, मनुष्य बाहरी रूप पर देखता है, मनुष्य बाहरी रूप पर काम करता है, मनुष्य बाहरी चीजों के ऊपर ध्यान देता है। मनुष्य तो बाहर रूप को देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है कि आपकी आत्मा कितनी मजबूत है, आपकी आत्मा कितनी सुंदर है। Noah was not an engineer.
नोआ जो था वो एक इंजीनियर नहीं था, He was not an architect. वो एक आर्किटेक्ट भी नहीं था। How can you give someone a project to build an ark if he is not an engineer, he is not a builder, he is not an architect? आप एक ऐसे व्यक्ति को जो इंजीनियर नहीं है, जो आर्किटेक्ट नहीं है, जो बिल्डर नहीं है, आप उसे संदूक बनाने जैसा कार्य कैसे दे सकते हैं? How can you give it? आप कैसे दे सकते हैं? Because it's not given, इसको ध्यान से सुनिए, it's not given on the basis of your certificate, it's given on the basis of your spiritual capacity. ये चीजें आपके सर्टिफिकेट के ऊपर नहीं दी जाती, ये चीजें आपकी आत्मिक क्षमता के ऊपर दी जाती है। It's not how much you can handle with your hand. ये इसके ऊपर निर्भर नहीं करता कि आप अपने हाथों से कितना संभाल सकते हैं। Assignments are released based on spiritual capacity. कार्यभार इस बात से रिहा की जाते हैं कि आपकी आत्मिक क्षमता कितनी है। Noah, think about Noah. How can God give Noah the assignment to build the ark? How can Noah get it? नूह के बारे में सोचिए कि परमेश्वर कैसे उसे वो कार्यभार दे सकता है, कैसे दे सकता है? What was his qualification? उसकी योग्यता क्या थी? The Bible says, in the entire world, Noah found grace in the sight of God. That was his qualification. बाइबल कहती है कि पूरी दुनिया में सिर्फ नूह के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था। So dimensional shift, assignment shifts based on spiritual capacity. Your spiritual capacity will determine how much you can hold what God has kept for you. तो आपके आयामी परिवर्तन इस बात पर निर्भर करते हैं कि आपकी आत्मा की क्षमता क्या है, आपकी आत्मा कितनी मजबूत है। Moses, I'll say this example. Moses knew that God called him. मूसा जानता था कि परमेश्वर ने उसे बुलाया है। Then he thought, एक एक करके I'll start killing soldiers. तो वो सोचने लगा कि मैं एक एक करके हर एक सिपाही को मारूंगा। He saw, I think today's movies he saw, I think. शायद उसने आजकल की पिक्चर को देखा रहेगा। Because the movie is entirely killing everybody. जाके फेरो तक पहुंच के उसको मार के फिर take the heroine and run away. That's the story. क्योंकि आजकल की पिक्चरों में ये दिखाया कि एक एक करके आप सबको मारिए, फिर आप आखिर में फेरो को मारिए, फिर आप हीरोइन को लेकर भाग जाइए। And so Moses is telling God, I am ready. एक सिपाही को ठीक कर दिया मैंने। तो मूसा कहता है कि मैंने एक सिपाही को ठिकाने लगा दिया है, अब दूसरे को देखते हैं। And so the Bible says Pharaoh came to know that Moses had done this and Moses ran away. और बाइबल कहती है कि फिरौन को मालूम पड़ा कि मूसा ने ये किया और मूसा भाग गया। See, Moses is thinking, I'm ready. मूसा सोच रहा है कि मैं तैयार हूँ। God says, you're not ready. परमेश्वर कहता है कि तुम तैयार नहीं हो। Because assignments are not carried by physical ability, it is carried by spiritual capacity. क्योंकि आप अपने कार्यभार को आपकी आत्मिक क्षमता से करते हैं, आपकी शारीरिक क्षमता से नहीं। So God said, go and take care of sheep for 40 years. तो परमेश्वर ने कहा कि जाओ 40 साल तुम भेड़ बकरियों की ध्यान दो। He says, work on your spirit. उसने कहा कि तुम अपने आत्मा पर कार्य करो। He says, work on your spirit. अपने आत्मा पर कार्य करो। Don't focus too much on the outside, work on your spirit. बाहरी चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो, अपने आत्मा पर काम करो। Because my eyes are on the spirit. क्योंकि मेरी आंखें, मेरी दृष्टि आत्मा पर है। And like a good father, when I see that your capacity has been developed to a level, I will release your assignment on you. और एक अच्छे पिता की तरह जब मैं देखूंगा कि तुम्हारी उन्नति हो गई है, तुम्हारी क्षमता में उन्नति हो गई है, और मैं तब तुम्हें उन चीजों को दूंगा। A true king, एक सच्चा राजा, his beauty comes from his spirit. उसकी सुंदरता उसके आत्मा से आती है। All of these exterior things, it's good, but in the kingdom of God, it's not effective. ये सारी बाहरी चीजें अच्छी है, पर वो परमेश्वर के राज्य में कुछ फायदे की नहीं। In the kingdom of God, it's how strong your spirit is. राज्य में ये मायने रखता है कि आप आत्मा में कितने मजबूत है। Can you pray? क्या प्रार्थना कर सकते हैं? How is your prayer? आपका प्रार्थना कैसा है? When Satan comes, can you talk? जब शैतान आता है आप उससे बात कर सकते हैं कि Can नहीं? you use the name of Jesus? क्या आप यीशु का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं? Do you know what righteousness means? क्या आप जानते धार्मिकता क्या होती Can है? you use your authority? क्या आप अपने अधिकार को इस्तेमाल कर सकते When हैं? sickness tries to attack your child, can you fight in the name of Jesus? जब बीमारी आपके बच्चे के ऊपर हावी होने का प्रयास करते तो क्या आप यीशु के नाम में उसका लड़ सकते हैं? That's spiritual capacity. ये आत्मिक क्षमता है। So I want to encourage you as I close. तो जैसे हम समाप्त कर रहे हैं, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा। Nobody has to see you, brothers and sisters. किसी को भी आपको देखने की जरूरत नहीं है भाई और बहनों। In your house, अपने अपने घरों में
privately निजी तरीके से work on your spirit अपनी आत्मा पर कार्य करे every day. हर दिन। That's a true king. एक सच्चा राजा है, That's a true king. यही एक सच्चा राजा है। They are making spiritual development priority. वो अपनी आत्मिक उन्नति को प्राथमिकता बनाते They're हैं। making spiritually, they're becoming strong. वो आत्मिक रूप से मजबूत होते हैं, They're working on their spirit. वो अपनी आत्मा पर काम करते हैं। Nobody knows, they're private people. They are working on their spirit. बहुत व्यक्तिगत लोग हैं, कोई भी इनके बारे में नहीं जानता और व्यक्तिगत रूप में वो आत्मा पर काम करते हैं। That person is truly attractive. ये व्यक्ति सचमुच आकर्षित है। For those of you who want to get married, just a suggestion. जो लोग का शादी Praise नहीं हुआ God. उनके लिए एक छोटा सा सुझाव, Check the person's spirit more than all the exterior things. उस व्यक्ति की आप आत्मा को देखिए, बाहरी चीजों के भी से ज्यादा Check the spirit. आप आत्मा को देखिए, See how spiritually strong a person is. देखिए कि वो आत्मिक रूप में कितना मजबूत है वो Because व्यक्ति। all other things will fade away. It will go कि away. बाहरी चीजें जो है, सारी चीजें जो है वो चली जाएंगी। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, we thank you for what we have heard today. पिता, हम धन्यवाद करते हैं जो कुछ भी आज हमने सुना। Help us work on our spirit. हमारी मदद करे ताकि हम अपनी आत्मा पर काम करें। In all of our busy schedule, हमारे जितने भी हमारे व्यस्त चीजें हैं, help us work on our spirit. हमारी मदद करे ताकि हम अपनी आत्मा पर काम करें। Little by little, थोड़ा थोड़ा कर कर, daily, हर दिन help us work on our spirit. हमारी मदद करे ताकि हम अपनी आत्मा पर काम करें। That we will labor on the word. कि हम अपने वचन पर हम ध्यान दें। That privately we will minister to you. कि व्यक्तिगत रूप से हम आपकी उपासना करें। We'll speak in हम tongues. अन्य भाषा में प्रार्थना करें। Study the word. हम वचन पर अध्ययन करें। Become a doer of the word. वचन को करने वाला बने, Become a true worshipper. सच्चे आराधक बने। And in all of this, Father, help us make our spirit strong. और इन सभी चीजों में पिता हमारी मदद करे ताकि हम अपनी आत्मा को मजबूत बनाएं। Thank you for all of the exterior things, धन्यवाद उन हर एक बाहरी चीजों के लिए, but help us make our spirit strong. पर हमारी मदद करे ताकि हम अपनी आत्मा को मजबूत बनाएं। Help us make spiritual development a priority. हमारी मदद करे ताकि हम आत्मिक उन्नति को हमारी प्राथमिकता बनाएं। And day in and day out, help us work on our spirit. और दिन भर दिन हम अपनी आत्मा पर कार्य करें। For you said a king's true attractiveness comes from the spirit. कि आपने कहा कि एक राजा की सच्ची सुंदरता उसके आत्मा से आती है। A king's beauty comes from his spirit. एक राजा का आकर्षण उसकी आत्मा से आता A है। king's dignity comes from his spirit. एक राजा की गरिमा उसके आत्मा से आती है। And you said in your word that it's only the spirit of a man that will sustain him during tough times. और आपके अपने वचन में कहा कि ये उस आदमी की, उस व्यक्ति की आत्मा है जो उसके कठिन चुनौतियों में उसके साथ खड़ी रहेगी। Help us work on our spirit. हमारी मदद करे ताकि हम अपनी आत्मा पर काम करें। Build that desire in us. हम में उस इच्छा को बनाएं। Thank you for doing it, Lord. ऐसा करने के लिए धन्यवाद प्रभु। Empower all of us. Give all of us the grace to do it. हम सबको आप सशक्त करें और हम सभी को आप उन चीजों को करने का अनुग्रह दें। Correct us when we are wrong. हमें आप सुझाव दीजिए जब हम गलत हो। Rebuke us when we are wrong. आप हमें डांटिए जब हम गलत हो। Correct us when we are wrong. हमें सुधारिए जब हम गलत हो। And bring us to the right direction. और हमें सही मार्गों पर लेकर आइए। And help us diligently work hard on developing our spirit. और हमारी मदद करे ताकि हम लगन से पूरे ध्यान और कठिन मेहनत कर हम अपनी आत्मा को मजबूत करें। We give you all the glory हम सारी महिमा आपको देते हैं in Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन।